Good morning and Jai Hind, my dear students. Welcoming all of you here in our SST class. So today, guys, we have to discuss about Himalayan system, the Himalayan mountain system. Okay. So as we have started in our previous classes, the Himalayan mountain system, and we have already discussed the first range. Okay. The Himalayan system is made by three parallel series. Okay, which starts from here like this to go here. Second and this third one. Okay, and the first we have already discussed. This is known as the Great Himalayan, the northernmost range of the Himalayan series. Fine. जो सबसे नॉर्थ में है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज नोन एज द ग्रेट हिमालय और द इनर हिमालय और ऑल्सो नोन एज हिमाद्री. ओके, एंड ऑल द माउंटेन्स, you can say all the highest mountain or the mountain peaks are present here in this range. Fine, in this series, the first range. Okay, these are parallel ranges, approximately parallel you can say. Okay, and all the highest mountains are situated here in the first range, that is the most northern range of Himalayas. Fine, like Mount Everest, Kanchenjunga, Makalu, etc, etc. And now today we have to discuss about this second series. Okay, this second one, you can say that is situated on the south side of the Great Himalayan range. Fine. Okay, so इसको डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स की हेल्प से. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू अस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फाइन. सो today's topic is the Himachal or the Lesser Himalayas. This second series, okay, that is known as the Himachal or the Lesser Himalayas. Look, this was the Greater Himalayas or the Himadri you can say, or the Inner Himalayas. Inner क्यों? क्योंकि ये सबसे फर्स्ट में है, सबसे अंदर है. ओके, अगर आप बाहर से अंदर की तरफ एंटर करेंगे इंडिया में, अगर आप ओशन से सीज से अगर एंटर करते हैं तो ये बिल्कुल अंदर है, तो इसलिए दैट इज नोन एज इनर हिमालयाज और द ग्रेटर हिमालयाज बिकॉज इट हैज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स and also Himadri. And now the second one, the Himachal. Look, it lying to the south of Great Himalayas. Okay, as I have told you that it lies in the south direction of Great Himalayas. Look, this is Great Himalayas. Okay, and this is south direction of Great Himalayas, and here the second series is known as the Himachal. Okay, that is also known as the Inner Himalayas. Oh sorry, the Lesser Himalayas. Second one, the altitude varies between 3,700 to 4,500 meters. एल्टीट्यूड मीन्स व्हाट कि यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, जो सेकंड ये सीरीज़ है आप कह सकते हो हमारे माउंटेन सिस्टम की, हमारे हिमालयन माउंटेन सिस्टम की जो सेकंड सीरीज़ है, इसमें जो माउंटेन्स हैं, ओके, उनकी सबकी हाइट होगी कुछ ना कुछ. तो एक एवरेज हाइट अगर देखा जाए तो 3,700 मीटर से लेके 4,500 मीटर तक है. अगर हम कंपेरिजन करें द ग्रेट हिमालयन से तो वहाँ पे 6,000 मीटर था. ओके, द एवरेज हाइट, मैं एवरेज हाइट की बात कर रहा हूँ. ओके, बट द हाइएस्ट पीक that was Mount Everest situated in Nepal, approximately 8,848. Okay, and now the next one, this range consists of the famous valleys of Kashmir and Himachal Pradesh. Look, बहुत सारी वैलीज हैं इस सीरीज में. ओके, हम कुल्लू घूमने जाते हैं, मनाली घूमने जाते हैं, मसूरी घूमने जाते हैं. दीज आर द हिल स्टेशंस विच आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दिस सीरीज. ओके, इसके अलावा बहुत सारी वैलीज़ हैं जो कश्मीर की वैलीज़ हैं, हिमाचल प्रदेश की वैलीज़ हैं. ओके, इसलिए हम इसको सीरीज ऑफ वैली कहा जाता है, कह सकते हैं. दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. ये जो सीरीज़ बनी हुई है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के वैलीज से बनी हुई है. वैलीज मीन्स व्हाट कि माउंटेन के बीच का जो एरिया होता है वो, उसके हम वैली कहते हैं. नाउ दिस रेंज इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन. कि ये वैलीज़ के अलावा इस रेंज में बहुत सारे फेमस हिल स्टेशन हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मसूरी, नैनीताल, कुल्लू, मनाली. ओके, बहुत सारी फेमस हिल स्टेशन हैं, मैंने कुछ यहाँ लिखा भी है. मसूरी, नैनीताल, रानीखेत ऑल्सो दैट आर सिचुएटेड इन उत्तराखंड. दीज ऑल थ्री आर द हिल स्टेशंस. एंड कांगड़ा, कुल्लू, दीज आर द वैलीज प्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश. ओके, सो दिस वॉज द सेकेंड सीरीज ऑफ हिमालयाज. तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको और कंपैरिजन करते चलते हैं द ग्रेट हिमालयाज से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम. ओके, द फर्स्ट सीरीज नोन द ग्रेट हिमालयाज, ऑल्सो नोन एज द इनर हिमालयाज, ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, while the second one is known as the Himachal or the Lesser Himalayas. Okay, look, the average height of the mountains present in the Greater Himalayas was 6,000 meters, while the second series, the Himachal, all the mountains present here have the average altitude, or you can say the average height of 3,700 meters to 4,500 meters. Fine. And after that we can say
that this peak has the highest mountain peak, this series has the highest mountain peaks, while this series has the hill stations. Fine, and that is also known as for its valleys. Okay, so now, and one more thing, this the greater Himalayas consist of the ग्रेनाइट्स. ओके, इसके कोर में अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रेनाइट मार्बल मिलेगा. चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं द थर्ड वन, दैट इज नोन एज शिवालिक. सो जस्ट गिव मी अ सिंगल मोमेंट टू राइट ऑल दैट थिंग्स. वेट अ सेकंड. Okay, so now Shivalik. Look, so first of all, look, let me show you that where it is situated. Look, as I have tried to make here the mountain system of Himalayas, the first range, the second range and the third range. Okay, one more thing you have to notice that अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये माउंटेन सीरीज जो है ये आके यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ये बेंड हो गई है कम्प्लीटली साउथ डायरेक्शन में. अभी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. दीज आर नोन एज द पूर्वांचल्स. अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट दिस इज द ग्रेटर हिमालयाज, द हिमाद्री आई हैव रिटन, द हिमाचल, एंड थर्ड वन इज शिवालिक जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो पहले शिवालिक डिस्कस कर लेंगे, फिर इसका पूरा एक बार रिकॉल मैं करवा दूंगा. ओके, सो एज यू कैन सी द शिवालिक इज द साउथ मोस्ट रेंज ऑफ दिस हिमालयन सीरीज. ओके, इसकी हाइट यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं एक्चुअली वो माउंटेन्स नहीं है, वो प्लेट्यूज आप कह सकते हो, या बहुत लेस हाइट वाले माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट एवरेज 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर्स तक है. और जो किससे बने हुए हैं, कम्प्लीटली वो बने हुए हैं सेडिमेंट से. सेडिमेंट मीन्स व्हाट, कि हिमाद्री से जो रिवर्स फ्लो होती हैं डाउन साइड में, ओके, इधर की तरफ, उससे जो भी सेडिमेंट्स फ्लो होके आते हैं और रिवर्स जिनको जितने भी सेडिमेंट्स नीचे लेके आते हैं, ठीक है, उनके सेडिमेंट से बना हुआ है कम्प्लीटली. आइए पॉइंट्स में इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, इट इज़ द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज, कि हिमालयाज का कम्प्लीटली साउदर्न मोस्ट रेंज है द शिवालिक्स. द एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 900 मीटर्स टू 1100 मीटर्स. एल्टीट्यूड मीन्स व्हाट, कि यहाँ के जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 900 मीटर्स से 1100 मीटर्स के बीच में है. एंड द थर्ड इज दिस रेंज इज कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज. मतलब ये जो मेन हिमालयन रेंज है इससे जो रिवर्स आती हैं फ्लो होते हुए नीचे, वो भी जितने भी सेडिमेंट्स लाती हैं वो नीचे लाके यहाँ पे क्या करती हैं, इकट्ठा कर देती हैं, कलेक्ट कर देती हैं, जिससे एक तरीके से ये माउंटेन रेंज बन चुका है. दैट इज नोन एज द शिवालिक्स. ओके, इसीलिए इसकी हाइट भी कंपेरिजन टू हिमाचल और द हिमाद्री ये कम है. ओके, एंड कवर्ड विथ थिक ग्रेवल. ग्रेवल मीन्स व्हाट, ग्रेवल इज द टाइप ऑफ सॉइल, ओके, जिसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर्स, सॉरी 0.5 सेंटीमीटर्स थिक. ओके, दैट इज नॉन एज ग्रेवल. तो ये तो था शिवालिक जो हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक था. तो कंप्लीट हिमालय एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हिमालय कैसे बना था. सो हिमालय बना है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन की वजह से. उसके बीच में जो टेथिस सी था वो फोल्ड हुआ और धीरे धीरे वहाँ पे उसकी हाइट इंक्रीज होती चली गई, और वहाँ पे अब हमारा जो सिस्टम है दैट इज नोन एज द हिमालयन माउंटेन सिस्टम. कंप्लीटली ये इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में एक बाउंड्री की तरह क्या है, सिचुएटेड है, जो इंडिया को नॉर्थ और ईस्ट से क्या करता है, बाउंड्री देता है. कंप्लीटली फ्रॉम नॉर्थ साइड टू ईस्ट साइड ऑफ इंडिया. ओके, आफ्टर दैट इट इज मेड बाय थ्री सीरीज. फर्स्ट द हिमालयन, सॉरी द ग्रेट हिमालय, सेकेंड द हिमाचल, थर्ड द शिवालिक्स. ओके, द ग्रेट हिमालय हैज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक्स, सेकेंड द हिमाचल has valleys and the hill stations, and Shivalik is made by the sediments brought down by the rivers. Okay, the average height of Great Himalayas is the Great Himalayas range is 600 meters, sorry 6000 meters will be here. I'm so sorry, it will be 6000 meter. Okay, and this one the Himachal 3700 meter to 4500 meter, and the last one the Shivaliks 900 meter to 1100 meter. Okay, so this was complete Himalayas. इसके अलावा हमें एक और पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज ड्यून्स. वेट अ सेकेंड. ड्यून्स क्या होते हैं? लुक, हिमाचल और शिवालिक, ओके, ये दोनों पैरेलल सीरीज हैं, इसके बीच में जगह जगह पे वैलीज हैं. ओके, दे आर नोन एज ड्यून्स. ओके, लेट मी राइट द डेफिनेशन एंड देन आई विल शो यू. वेट अ सेकेंड. ओके, लुक, द डेफिनेशन ऑफ ड्यून इज वेरी वेरी इजी. द लैटिट्यूडनल वैली lying between Himachal and Shivaliks are called dunes. For example, Dehradun, Kotli Dune, and so many other dunes are also there. Okay, between Himachal and Shivaliks. Okay, Dehradun is the very most important, you can say the example, because हम जानते हैं देहरादून क्या है. ये सिटी एक प्लेस है जहाँ पे हम जाते भी हैं. इसके अलावा कोटली ड्यून है जहाँ पे बहुत कम ही लोग गए होंगे.
Okay, so this was dunes, and apart from this, the mountain system of Himalayas is further divided into several parts. अभी हमने रेंजेस में पढ़ा, पैरेलल रेंजेस में, अभी हम इसको अलग अलग एरियाज के पॉइंट ऑफ बेसिस पे डिस्कस करेंगे कि अलग अलग एरियाज को क्या कहते हैं. लुक, इनके बीच में बहुत सारे रिवर्स फ्लो होती हैं. ओके, जो हिमालयन सिस्टम को क्या करती हैं, अलग अलग रेंजेस में डिवाइड करती हैं. उस अलग अलग रेंजेस को हम क्या कहते हैं, अलग अलग रीजन्स को हम क्या कहते हैं. एक्चुअली दीज आर रीजन्स नॉट रेंजेस. ओके, इन अलग अलग रीजन्स को हम क्या कहते हैं, ये हमें डिस्कस करना है. ओके, सो जस्ट गिव मी अ सिंगल मोमेंट and then we will discuss it. Okay guys, and now we will discuss Himalayas on the basis of regions. Okay, look, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं. Suppose these are the range of Himalayas, 3 ranges. Okay, इनके बीच में बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती हैं. ओके, और 2 रिवर्स के बीच में जो रीजन है, उस रीजन के, उस प्लेस के नाम पे उस वहाँ के माउंटेन्स का भी नाम पड़ गया है. जैसे सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें तो आप कह सकते हो कि अगर यहाँ इंडस रिवर है, यहाँ पे सतलज रिवर है, एंड आफ्टर दैट देयर इज़ काली रिवर, एंड देन तिस्ता रिवर, एंड देन इन आसाम यू आर नोइंग दैट देयर इज़ अरुणाचल प्रदेश, देयर इज़ दिहांग. एक्चुअली ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ नोन एज दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश. ओके, नाउ लुक, let me write it here. Indus, after the Satluj, then Kali, this is Kali, this is Tista, and this is Dihang. Actually exactly ये सभी रिवर्स हिमाचल के, हिमालय के, सॉरी 3 रेंजेस को पार नहीं करती हैं, बट आपको समझाने के लिए मैंने बस ऐसे बनाया हुआ है. ओके, लुक, हिमालय का वो एरिया जो इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में आता है. ओके, देखिए, बिटवीन इंडस एंड सतलज, अगर आप मैप में वहाँ पे देखेंगे तो आपको मोस्टली वहाँ पे नीचे अगर देखेंगे, यहाँ पे तो पंजाब का एरिया मिल जाएगा और ऊपर जम्मू कश्मीर का एरिया मिल जाएगा. ओके, सो दिस एरिया, दिस रीजन ऑफ हिमालयाज इज नोन एज पंजाब हिमालयाज. ओके, रीजनली देखा जाए, रीजनली मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस एरिया का नाम है पंजाब हिमालयाज, जिसको ट्रेडिशनली मीन्स कि बहुत पहले से पंजाब हिमालयाज कहा जाता था, लेकिन अब उसको रीजनली एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कश्मीर और हिमाचल हिमालयाज कहा जाता है. कश्मीर एंड हिमाचल, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो आपको कश्मीर मिल जाएगा और कश्मीर के जस्ट नीचे आपको हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा. पंजाब कुछ यहाँ पे है, तो पंजाब हिमालयाज ट्रेडिशनली कहा जाता था, एंड कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज हम रीजनली कह सकते हैं. अब ओके, आफ्टर दैट सतलज रिवर एंड काली रिवर. तो सतलज रिवर एंड काली रिवर के बीच में देखिए जो प्लेस है, ठीक है, दैट इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज. फाइन. एंड आफ्टर दैट काली रिवर एंड तिस्ता रिवर, बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर देयर इज नेपाल हिमालयाज. अब अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये पोर्शन आपको नेपाल का मिल जाएगा. ओके, नेपाल हिमालयाज. आफ्टर दैट तिस्ता एंड दिहांग, दैट इज नोन एज आसाम हिमालयाज. अगर आप तिस्ता से आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको आसाम मिल जाएगा, ऊपर अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा. अरुणाचल प्रदेश में ही ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है. ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश नोन एज दिहांग. तो वहाँ पे दिहांग रिवर, तो तिस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में आपको जो प्लेस मिलेगा हमारे हिमालयन सिस्टम का, दैट इज नोन एज आसाम हिमालयाज. बट व्हाट अबाउट दिस पोर्शन जो इसके बाद है. लुक, जैसे ही ये बेंड होता है साउथ की तरफ, दिस पोर्शन ऑफ हिमालयाज इज नोन एज पूर्वांचल हिमालयाज. अभी इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो अगेन जस्ट गिव मी अ सिंगल मोमेंट फॉर राइटिंग दिस पूर्वांचल. पूर्वांचल हिमालयाज. ओके, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो जस्ट गिव मी अ सिंगल मोमेंट. ओके, so guys, now we have to discuss about the Purvanchal. Okay, as I was telling you, this Punjab, Kumaon, Nepal, and this is Assam Himalayas. After this Assam Himalayas, look, as you can see, the Himalayan ranges are bent towards south. Okay, and you can see the eastern boundary of India, and this portion is known as Purvanchal. Look here, beyond the Assam Himalayas, that means Assam Himalayas के बाद the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of इंडिया, कि साउथ की तरफ मुड़ जाता है आसाम हिमालयास के बाद. ओके, और ये इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है और कंप्लीटली यहाँ पे स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. एंड दिस पार्ट ऑफ हिमालयास आर नोन एज पूर्वांचल. हिमालयास के इस पार्ट को जो साउथ की तरफ बेंड हो गया है, दैट इज नोन एज पूर्वांचल, जो कंप्लीटली आप कह सकते हो
आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में, यहाँ पे आते हैं। ओके, एंड दीज आर कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल ये डेंस फॉरेस्ट यानी कि बहुत घने फॉरेस्ट से घिरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। एज यू आर नोइंग दैट मासिनाम इन मेघालय इज द मोस्ट रेनी एरिया इन द वर्ल्ड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, दीज हिल्स कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन्स एंड कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। कि ये जो एरिया है ये मोस्टली सैंडस्टोन से बना हुआ है, ये हिल्स सैंडस्टोन से बने हुए हैं और कंप्लीटली ये क्या होते हैं, फॉरेस्ट से कवर्ड होते हैं थ्रू आउट द ईयर। कुछ हिल्स के नाम यहाँ एग्जाम्पल से मैंने राइट किए हुए हैं, लाइक पटकई हिल्स, द नागा हिल्स, द मिजो हिल्स एंड द मणिपुर हिल्स। ये मिजो हिल्स दैट इज सिचुएटेड इन मिजोरम एंड द मणिपुर हिल्स इन मणिपुर, क्योंकि ये स्टेट ही यहाँ पे है, मणिपुर एंड द नागालैंड ऑल्सो, मिजोरम ऑल्सो, तो उन्हीं के नाम पे इन सारे हिल्स के भी नाम हैं। So I hope now completely Himalayas is clear to you कि how Himalayas formed, how many series are there, 3 series, and on the basis of this longitudinal series and on the basis of these regional names. Okay, Himalayas is different, divided in on the basis of 2. First on the regions and second on the ranges. Ranges means 3 parallel ranges, the Great Himalayas, the Himachal and the Shivalik, and on the basis of regions also. Okay, and after that this portion is known as Purvanchal. So this was the complete session of Himalayas. I hope this is all clear to you, and today the Himalayas system is clear. And now in our next video session we will discuss about the Indian Peninsula. Okay, sorry, the northern plains about. Okay, so please make a fair copy regarding all these topics. See you in the next video. Thank you.